winter in South Africa and a scorching summer here in India, with heat waves prevailing over several parts of the country. When the female Namibian cheetah, Jwala, gave birth to 4 cubs early this year on 29th March, she expected cool winter nights and probably a rainy season. But what she got instead was a harsh summer. And as the Forest Department officials put it, these vulnerable creatures were indeed deceived by the sudden change in the weather cycle here, and it will take at least a year for them to understand the change in the weather here. The Forest Department officials here at Kuno told us that the 3 of the cubs who died, in fact, died of heat stroke. There was severe dehydration and they were underweight when they were born, which was less than 1.5 kgs. These are tough times for Project Cheetah, India's grand wildlife experiment to restore the population of these endangered creatures in the country. Here at Kuno in Madhya Pradesh, as many as 11 of the cheetahs are now in the bomas or the enclosures in Palpur, while 6 of them have been released into the wild. The Forest Department officials tell us that all the 8 who are in the bomas have been hunting on their own, while the 6 others who are released into the wild are being tracked 24/7 by the department officials. Out of 6, there are 2 male coalitions, which is 2 sets of male, and there are 2 individual females. Interestingly, the officials also told us that on Friday night, one of the female cheetah, in fact, went far as Madhya National Park, which is about 50 kilometers from here. And the Forest Department officials who went to track were in fact beaten up by the local villagers at 3 o'clock in the night because they were confused and they thought of them as dacoits. Well, yes, that is going on here at Kuno National Park. There is a bit of a demotivation, but the hopes are up and the officials think that they will be able to save the rest of the animals, but mortality can definitely happen. We are here talking to the locals and the staff at the Kuno National Park to understand more about the situation. तो अभी बता रहे हैं कि यहाँ कुनो में काफ़ी गर्मी देखी गई है पिछले कुछ दिनों में, तो आपको क्या कहना है इस मौसम के बारे में? हाँ मैम, वैसे इस बार क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, लेकिन अभी क्या है 8 से 10 दिन पहले टेम्परेचर मतलब कुछ ज़्यादा हो गया था। अभी थोड़ी बारिश होने के कारण टेम्परेचर नॉर्मल हो गया है, लगभग गर्मी कम हुई है। अब ये पिछले साल जब ये चीता लेकर आए थे कुनो नेशनल पार्क में, इंडिया में एक अकेली जगह है जहाँ पर अब चीता हैं, तो यहाँ पे क्या क्या आपने देखे हैं, बदलाव देखे हैं पिछले 1 साल में? जी मैम, यहाँ पे चीता आने से मतलब काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। जैसे कि अभी हमारे जो गेट वगैरह हैं वो उनका भी काम चल रहा है, वो भी बन रहे हैं, और यहाँ पे जो वन प्राणियों को पानी के लिए सॉसर का निर्माण हो रहा है, और रोड डेवलपमेंट वगैरह, और आसपास के जो गांव हैं पार्क से लगे हुए, उनमें भी डेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। और यहाँ पर जितने स्टाफ रहते हैं वो चीता की ड्यूटी पर रहते हैं, ये पूरा एरिया फेंस्ड है जहाँ तक चीताज रहते हैं, आप बाउंड्री है यहाँ पर? जी मैम, मतलब इसमें क्या है, इसकी जो बाउंड्री वाल है उसमें कुछ जगह पे तो पत्थर की दीवार है और बाकी जगह पे फेंसिंग की गई है जी, और जो चीतों के बाड़े हैं उनको सेपरेट पार्क के अंदर बीचों बीच बनाए गए। So as we spoke to the Forest Department, as many as 11 cheetahs are now in the bomas or the enclosures and in the Palpur area in the Kuno National Park, while 6 of them have been released into the wild. As you can see behind me, these are the walls which have been constructed outside the Kuno National Park to ensure that cheetahs remain within the periphery. It's a tough time for Project Cheetah, with 6 cheetah deaths recorded in the last 2 months. The excitement and hope among the people for this wild carnivore that has now entered the Kuno National Park has paved way for some disappointment. But what do the people have to say here? तो जब से यहाँ पे पिछले साल से चीता आए हैं, तो यहाँ पे क्या बदलाव हुआ है, क्या लोगों का मानना है? चीता आए जब से बहुत बदलाव हुआ है मैम, लोगों में बहुत खुशी की लहर है, आसपास के क्षेत्रों में सब में बढ़िया। तो यहाँ पे किसी ने क्या कभी चीता देखा है बाहर निकलते हुए, कभी किसी को दिखा हो? बाहर तो नहीं देखा, अंदर जरूर हमने देखा है, हम देखते रहते हैं, ट्रैकिंग टीम ले जाते हैं चीता उन पर। So there are 6 cheetahs who are now in the wild and they have been going around the Kuno National Park. तो चीता के अलावा यहाँ पे और कौन-कौन से जानवर हैं?
और जानवर तो बहुत हैं, लेपर्ड हैं, भालू हैं, और वैसे शाकाहारी जानवर भी हैं, चीतल, सांभर, सुअर, बहुत अधिक संख्या में हैं। So now we are standing about 12 kilometers from the Gwalior highway. We are now at the Ajnera gate, which is one of the gates of the Kuno National Park, and there is a periphery around it, as you can see, from where which has been specially created by the Forest Department to ensure the cheetahs remain within the periphery. So here we have several tourists coming from different countries, different parts of the country to visit Kuno National Park with a hope to see cheetahs, but they had to go disappointed, at least this time. तो ये कूनो नेशनल पार्क में आप पहली बार आए हैं और क्या क्या आप उम्मीद लेकर आए थे और आपको क्या क्या यहाँ पर दिखा है? यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा उम्मीद लेकर आए थे कि जो कि नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीते आए हैं, मोदी जी यहाँ उद्घाटन करने आए हैं, इतना बड़ा नेशनल पार्क है, बहुत कुछ देखने मिलेगा, काफ़ी सारे चीते छोड़े हुए हैं, नए बच्चे पैदा हुए, पर कुछ भी देखने नहीं मिला ऐसा। बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, बहुत ज़्यादा लंबा घूमना पड़ा, पर यहाँ फैसिलिटीज़ थोड़ी सी कम है, जिनकी एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज़्यादा रहती है। टूरिस्ट अगर बहुत दूर से आए, उनके पास खाने पीने का कुछ नहीं है, तो फैसिलिटीज़ थोड़ी कम है, थोड़ी सी ज़्यादा ज़रूरत है इनको ठीक करने की। तो यहाँ पे आपने कौन कौन से जानवर अभी तक देखे हैं? सबसे ज़्यादा हम लोगों को हिरण दिखाई दिए हैं, कुछ नीलगाय थी, और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा मोर थे, और सबसे ज़्यादा गाय हैं, जो हमारी देसी गाय होती हैं, वो बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा हमें चीता बिल्कुल भी नहीं दिखाई दिया, कोई साइट विजिट नहीं हुई है। और मौसम के बारे में आपका क्या कहना है? मौसम सुबह जब हम आए थे बहुत ही कूल हो गया था, उसकी वजह से हमें 1 घंटा डिले हुआ, एंड देन हमें अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी मिली है, जिसकी वजह से हम ज़्यादा देर अंदर रुक भी नहीं पाए जंगल में। मैम, आप कहाँ से आए हैं और कितनी दूर आपको ट्रैवल करना पड़ा है? हम ग्वालियर से आए हैं जी। और काफी मतलब ट्रेवल करना पड़ा है हम लोगों को। 2.5 से 3 घंटा में आने में 2.5 लग 3 गया घंटे था। हो गए हम लोग को। जी। और यहाँ पे आपको कौन कौन से जानवर अभी तक दिखे हैं अंदर? हमको हिरण दिखा है, नील गाय दिखी है, मोर वगैरह दिखी, बस और कुछ नहीं दिखा। अच्छा, चीता को देखने की उम्मीद जरूर होगी। लेके आए थे, कुछ और भी जानवर मिलेंगे हम लोग को देखने। बच्चों को लेके आए हम साथ में, दूर दूर से आए बच्चे हमारे, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। So here we have some tourists who say that definitely it's a very, very hot summer and there should be more facilities, and that is what the government intends to provide. Let's see if the cheetahs can bring those facilities to Kuno National Park. जी, ये कौन सा गांव पड़ता है? आयरो आयरो। अच्छा, यहाँ पे लोगों को क्या चाहिए अभी? मेहनत मजदूरी कैसे हो रही है? हमारे को पानी चाहिए और मेहनत मजदूरी चाहिए और हाँ किसान लोग हैं तो इनका जहाँ मेहनत मजदूरी करवे कई की मजदूरी करें। जंगल में जाते ये रेंज वाले जान नहीं दिए जंगल में अभी कब से जाने नहीं दे रहे? नहीं जान दिया तो तबाही से बेहन जाते हैं, लाख लकड़ियन को बड़े चोरी से जाते हैं, देख नहीं जान दिया वो जी गर मन को। अच्छा, ये मना करते हैं। अच्छा, अभी अंदर मना कर दिया है। और मना करते हैं, कसीर छोड़ देंगे कि मत जाओ कोई यही है। अच्छा, और यहाँ पे अपना मेहनत मजदूरी कैसे कर रहे हैं? सब मेहनत मजदूरी गेहूँ काट के लाता बाहर से और पैसा की मजदूरी बाहर से कर के लाता कंपनी में से, जहाँ कोई मजदूरी न ना पानी मानी पानी नीचे घटिया पहाड़ ते उतर कर तब जाता है, तब पानी आता ऊपर 1 घंटा में 1.5 घंटा में तब घर आया अपना आते हैं। कचू ना पानी मानी जगह मजदूरी उतना न कचू मेहनत मजदूरी करे और पानी तो दूर है जगह पानी निकला सकता क्या भाई पूरा चारा बगल लगा दे पंप पानी न। और गर्मी में ज्यादा परेशानी? गर्मी में ज्यादा ना पंख लाइट ना कचू न जगह पे ना रोड पोड़ कचू ना लाइट हुआ तो पंखा लगा दिए ले लिए, अब कैसे लिए लाइट ही ना लाइट नहीं है। और चक्की मक्की कैसे लगा पोरी बटना जा तब पिसा कर लाते हैं। 100 रुपये किराए लगा तब पिसा कर लाते हैं। 100 रुपये किराया जाने का लगता है? जे पोरी बटना जे। अच्छा, हाँ हम बाजार में बिजली भी नहीं है? नहीं है बिजली नहीं, पानी भी नहीं है और ना रोड पोड़ खतू नहीं। ये जानवर यहाँ पे आते हैं? नहीं यहाँ कहाँ पे जंगल में रहते हैं, जंगल में रहते हैं नहीं यहाँ जानवर कहाँ पे नहीं है। किसान गाँव है तो किसान हुआ तो किसान का मजदूरी कर रहा है,
और किसान नन्ना जा गाँव में आदिवासी है वो करें काम सरपंच ने हमारे काम चलाए नहीं निकारे नहीं कई को काम करें बाहर जाते हैं तंग लाते कमा का तंग खर्चा हो जाता। अभी सरकार से आपकी क्या उम्मीदें हैं? यहाँ पर कूनो नेशनल पार्क के बिल्कुल पास है ये गांव, सबसे पहला गांव है, क्या उम्मीदें हैं? ये तो कच्ची नहीं है मेरे पास सब 28 कहाँ पे उठ गया बॉर्डर वहाँ हो कहाँ जंगल में जाल नहीं देंगे रे सपा रेंज बारे मन कई करे मजदूरी करे तो कोई मजदूरी निकालते तो मजदूरी कर लेंगे कि तुम कोई आवा तो सपनी यहाँ तो बैठे नहीं तांगे था। बच्चों के लिए स्कूल हॉस्पिटल नहीं है, कोई कच्ची नहीं है बच्चों के लिए स्कूल कोई नहीं है ना स्कूल लग रहा है। कब आएंगे बाई चांस कब 1 महीना होगा मतलब आएंगे तो कब आप ड्यूटी बजाए तो हाले चले जाते नहीं को आएंगे टड़े टड़े बज गए मिड़ मुड़ने में नाले कहीं जग गए। यस जी यहाँ पर ये जो सोलर का ये लगाया है इससे बिजली है कब लगाया है और इससे क्या कुछ फायदा हुआ है? फायदा कच्छ नहीं है मतलब लाइट कोई पाला मतलब बैटरा खराब हो गए बैटरा कच्छ तो और ये जब प्लेट तो रही होते हैं खराब बैटरा खराब हो गए। अच्छा और ये सारे घरों में लगा है? साहब कोई नहीं है 12 कहीं कच्छ चली गई आंधी छोड़ गई फूट पाट गई। अब कच्छ नहीं है काम हो तो लाइट है खान दिया ना कोई दिया बहुत तो सरपंच सेक्रेटरी कोई काबूंगा तो भी नहीं करा कच गई। बच्चों के लिए क्या चाहिए, क्या है, क्या चाहते हैं सरकार? कचू नहीं है चाहे बच्चों के खाजा खादा हुआ कोई आए रुके 1-2 दिन को तब कचू दी और दिखाया कराने बच्चों ने स्कूल ही नहीं देखे और कई स्कूल ही देखे नहीं देखे बिना मास्टर ही नहीं देखे कैसे मास्टर ये यहाँ पे गांव में सारे आदिवासी ज्यादातर आदिवासी कितने सालों से रह रहे हैं यहाँ पे? बहुत अब जिंदगी तो रह रहा है का तो कितने के नहीं जाना चाहते हैं? अच्छा आपके भाई बहन पढ़ रहे हैं? नहीं पढ़ रहे कोई आते ना तो पढ़ाने खाते स्कूल नहीं है यहाँ पर? स्कूल तो है कोई आते नहीं मास्टर पढ़ावे स्कूल जाए। अच्छा स्कूल दूर है काफी? दूर ना पास में है कोई नहीं आए पढ़ावन का जाए तो घर ही बैठे रहते। अच्छा स्कूल में टीचर नहीं आते हैं? टीचर नहीं आते। अच्छा तो आप कभी भी स्कूल नहीं गए हैं? स्कूल कहाँ से कोई आते ना खाड़े नहीं स्कूल। Keep patience and a little bit of hope. Well, that is a message the Forest Department has to give for people tracking Project Cheetah across the country and across the world. As of now, 17 adult cheetahs now remain. 11 of them are in the bomas, while 6 of them have been released into the wild. The condition of the lone cub surviving is now stable. There's 24-hour monitoring being done. A team of 4 doctors has been stationed in Palpur inside Kuno National Park, where all the bomas are situated. And strict instructions have been given to officials to ensure there's proper water availability for all the cheetahs in the bomas. While the staff hopes that the Kuno river flowing inside the Kuno National Park can satiate the thirst of the cheetahs in the wild. The long quarantine period that these animals were subjected to has always been a cause of concern for the wildlife experts, and now the Forest Department is very keen to release all these animals into the wild one by one. 6 of them have been released into the wild and 2 more will be released in the coming few days.